اور اس سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا شکل دیکھ کے عورت کی کہ یہ زیادہ بچے دے گی یہ کم بچے دے گی؟ پروفیٹ صاحب کی جو پہلا نکاح تھا خدیجہ، وہ لو میرج نہیں تھی. نہیں اس کو لو میرج نہیں کہیں گے. ارینج میرج مانے تن پسند اور لو میرج مانے من پسند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لو میرج کیا تھا. جی ہاں، اس طرح کی باتیں آج آپ کو اس ویڈیو میں سننے کے لیے ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاب کرتے تھے، یعنی کام کرتے تھے. یہ کام کرتے کرتے ان کو ان سے محبت ہو گئی. جبھی تو 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ عورت سے نکاح کیا تھا. آج کے مولانا لوگوں کو لو میرج کرنے سے روکتے ہیں. یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، یہ ان کی ضد ہے. آج کے دور میں جو مولانا لوگوں کو لو میرج کرنے سے روکتے ہیں یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ لو میرج کرنا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. علماء کرام کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو محبت کی شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ اہم ویڈیو ہونے والی ہے، اہم گفتگو ہونے والی ہے. پہلے مکمل ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے کہ علماء کرام لو میرج کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں بھی چند باتیں کروں گا. میری باتوں کو بھی آپ آخر میں ضرور سنیے گا، بہت ہی اہم گفتگو ہونے والی ہے. تو محبت کی شادی کرنا اسلام میں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ ہے کہ آپ شادی اسی سے کریں جس سے آپ کو محبت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو. تو لو میرج کا تو مشورہ دیا گیا ہے احادیث میں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ لو میرج کا طریقہ کیا ہے، یہ ضروری ہے. شاید اگر علماء کرام اور مسلمان عالم اسلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی اولاد کو بتا دیں کہ تم لو میرج کر سکتے ہو، تو بہت ساری اس سے مثبت پازیٹیو چینجز معاشرے میں آئیں گی. چونکہ اس وقت لو میرج کو ایک ٹبو سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے عالم اسلام میں، لہٰذا اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں چھپ چھپ کر کے محبت کرتے ہیں، چھپ چھپ کر کے ہی کورٹ جا کے نکاح بھی کر لیتے ہیں اور گھر سے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر حدیث کی روشنی میں اگر معاشرے میں اس بات کو عام کریں مسلمان اور علماء کرام اس پر زور دیں اور والدین اس بات کو قبول کریں جو اللہ کے رسول نے فرما دی ہے، اور پھر بچوں کو یہ پتا ہو کہ بھئی لو میرج کی تو اجازت ہے، تو پھر کوئی بچی گھر سے بھاگ کر یا چھپ کر لو نہیں کرے گی. اب یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ مولویوں کی بات سننا چاہتے ہیں تو ان کی سن لیں، اللہ کے رسول کی بات سننا چاہتے ہیں تو ان کی سن لیں. اللہ کے رسول کو تو اپنی بیوی سے محبت تھی، یعنی کوئی تو بات ہوگی جو خدیجۃ الکبریٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. آپ کی عمر 25 سال تھی، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، اس کے باوجود بھی شادی کر لی. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 15 سال پہلے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تو اس سال کو گستاخی کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ یہ وسلم بات میں اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت غم کا سال قرار دیا. اب یہ محبت ہے نا کیا تھا کہ اس کو معاذ اللہ غم کا سال قرار دیا. لہذا اہل اسلام کو حضور کی حدیث کی روشنی میں یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محبت جو خاتون آپ سے کرے آپ اس سے شادی کریں، جس سے آپ محبت کرتے ہوں، جو آپ سے محبت کرتی ہو آپ اس سے شادی کریں. پروفیٹ صاحب کی جو پہلا نکاح تھا خدیجہ، نہیں وہ لو میرج نہیں تھی. نہیں اس کو لو میرج نہیں کہیں گے. وہ ان کیا ایکس مسلم اور غیر مسلم کی طرف سے یہ سوال ہے. دیکھیے الزام لگا رہے ہیں، کامنٹ کر کے آپ جواب دیجیے. اسلام تھا ہی نہیں تبھی.
हाँ इस्लाम था ही नहीं तभी। उस टाइम वो है कि वो बहुत छोटी थी, वो कबल वक्त का मसला था, वो उनकी दीनदारी, अमानतदारी। जब इस्लाम नहीं आया था उससे पहले मेरे आका जो की जो जानकारी अखलाक और कहती है पैगंबर अमानतदारी साहब थी। 25 साल के थे और वो 40 साल की थी, हाँ। तो क्या वो मतलब उनको वो लव मैरिज नहीं कहलाई जाएगी? आप नहीं, देखिए मैडम, वो ज़ाते करीमा हमारी निगाह में ऐसी है, दुनिया जानती है, ठीक है। वो इस्लाम से पहले की बात है। उम्र उनकी क्या थी, उनकी उम्र वो क्या थी, वो मैडम थोड़ा सा देखो, अकीदत और मोहब्बत की बातें हैं, उस पर नहीं, वो अपनी जगह अटल थे, अटल हैं, अटल रहेंगे। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि एक जगह मैं चाहता हूं, एक जगह मेरे माँ बाप चाहते हैं, मैं क्या करूं? जहां हम चाहते हैं वो भी जगह अच्छी है, जहां माँ बाप चाहते हैं वो भी जगह अच्छी है, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है? हम जहां चाह रहे हैं वहां माँ बाप नहीं चाह रहे, जहां माँ बाप चाह रहे हैं वहां हम नहीं चाह रहे। इमाम से सवाल हुआ, इमाम ने फरमाया जहां तुम चाहते हो वहां करो, जहां ये चाहते हैं वहां ना करो, ना करो। असल यहां पे माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है? काउंसलिंग करें, अच्छा बुरा बताएं। कब बताएं? कि जब बच्चे किसी बुराई में जा रहे हैं, किसी बुरी तरफ जा रहे हो। ना ये कि हमें एहसास हुआ कि लड़के ने किसी को पसंद कर लिया या लड़की का कहीं रुझान है तो फौरन अंदर से एक विलन निकला कि बस हमें अपने बच्चों के खिलाफ खड़ा होना है। नहीं, हमें अपने बच्चों के खिलाफ हमेशा नहीं खड़ा होना है। हमें अपने बच्चों के खिलाफ खड़ा होना है कब? कि जब वो गलत सिमत में जा रहे हैं। इसको आप अरेंज्ड मैरिज बोलते हो, उसमें आप अधिक से अधिक सामने वाले का तन देख पाते हो, तन पसंद आया कि नहीं आया। कई बार तन भी नहीं देखते, सिर्फ तस्वीर में चेहरा देख लेते हो। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हो तो लड़की के घर चले जाते हो, लड़की लड़के के यहाँ जाती है, वहां पे उसको खड़ा वड़ा करके देखते हो, कदम नाप लेते हैं। अरेंज मैरिज माने तन पसंद और लव मैरिज माने मन पसंद। प्रेम विवाह थोड़े ही बेहतर हो सकते हैं आयोजित विवाहों से। तन पसंद से मन पसंद तक का सफर कोई बहुत लंबा नहीं होता है। आप कितने होशियार हो, आपकी जिंदगी में विवेक कितना है, जो आप मनपसंद लड़का या लड़की चुनने निकल पड़े हो। आप क्या जानते हो? या आपकी लड़की किसी को पसंद करने लग गई, आपका लड़का किसी को पसंद करने लग गया है, तो उस वक्त में बहुत ही हिकमत अमली के साथ और बहुत ही बुर्दबारी के साथ, शांति के साथ उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई ये जोड़ा मुनासिब है या नहीं। अगरचे आपकी पसंद का नहीं है, लेकिन अगर ये जोड़ा मुनासिब है तो आपको चाहिए कि कम से कम सरपरस्ती करते हुए इनका निकाह कराकर दे देना चाहिए, ताकि इसकी वजह से ये किसी गलत रास्ते पर ना पड़ जाए। गलत रास्ते पर यानी या तो यही कि या तो वो भाग कर शादी करेंगे या ये कि वो जिना में मुब्तला हो जाएंगे। तो इन सब खुराफात से ज्यादा बेहतर है थोड़ा सा अपने ईगो को नीचे किया जाए और जो है इन लोगों के लिए मुनासिब अगर समझा जाए तो इनका निकाह कराकर दिया जाए। तो जहां तक के हालात एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़कियों को देखा? बोला नहीं। तो जाके देखो। तो लड़कियों को देखना सुन्नत है। तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते हैं लेकिन शरीयत के दायरे में। लव मैरिज करना जायज है या नहीं? तो अगर लव मैरिज से मुराद यह है कि किसी लड़की या किसी लड़के ने किसी लड़के या किसी लड़के को कभी कहीं देखा या किसी तरह मुलाकात हुई है, उनके रिलेटिव्स में है और वो उनको पसंद करते हैं, तो अपनी पसंद अगर घर वालों को बताई जाए, घर वालों को राजी करें, घर वाले अपना पैगाम उन तक पहुंचा दें, यानी लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों को या लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को वापस में इस रिश्ते को पसंद कर लें और शादी कर लें, बेहतर समझें तो बच्चों की शादी कर दें, तो इस तरह इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत देता है। और अगर लव मैरिज का मतलब यही है कि आप किसी को पकड़ें और उसके साथ उसको फंसाएं और उसकी सेटिंग करें और उसको लेकर भाग जाएं कि लड़का बाप को धोखा दे, माँ बाप को अपने, और लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे, तो इस तरह इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। फरमाया अखलाक दीन जहां देखो रिश्ता कर दो। अगर बच्चा अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे नाफरमानी ना समझो। अगर बच्ची अपनी पसंद का कह दे कि मेरी यहाँ शादी करें तो उसे बेअदब, उसे बेहया न समझो। अल्लाह का वास्ता देता हूँ माँ बाप को। सूरह निसा में जो अहकाम आए औरतों के लिए, अल्लाह ने फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, औरतों में से जो तुम्हें पसंद आ जाए उनसे निकाह कर लो। निकाह बहुत जरूरी है नौजवानों। मेरे आका ने फरमाया निकाह के बाद ईमान कंप्लीट हो जाता है। निकाह, और इसी में अल्लाह ने फरमाया कि निकाह करो, अगर तुम फकीर भी हो तो अल्लाह अपने फजल से तुम्हें गनी बना देगा। ज्यादातर उलमा इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि शादी पसंद की ही करनी चाहिए। पसंद से क्या मुराद है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को कहीं देख लिया या किसी लड़की ने किसी लड़के को देख लिया, तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ शादी का पैगाम भेज सकते हैं, रिश्ते का पैगाम भेज सकते हैं, तो ये पसंद की शादी है। लेकिन लव मैरिज से मुराद अगर आप ये लेते हैं कि शादी से पहले फोन में बातें करो, हाथ पकड़ के बाजार में घूमो, होटल में जाके नाश्ता करो, पार्क में घूमने के लिए जाओ,
गार्डन में घूमने के लिए जाओ, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ मिलो, बातचीत करो, इसको अगर आप लव मैरिज कहते हैं तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, ये नाजायज और हराम है। रही बात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से क्यों निकाह किया था, जबकि आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 बरस की थी। ये लोगों की तरफ से एक एतराज है। उस एतराज का जवाब यह है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में हजरत खदीजा से निकाह किए थे, उस दौर में बेवा औरतों की कोई हैसियत नहीं थी। अगर किसी औरत का कोई शोहर मर जाता था तो उसको एक काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। लोग उसको मनहूस समझते थे, लोग उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निकाह करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि ए दुनिया वालों, देखो मोहम्मद की नजर में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में औरत का क्या मकाम है। तो खुलासा कलाम ये कि लव मैरिज शादी करना जायज है, लेकिन कोई लड़का अगर किसी लड़की को लेकर कहीं भाग जाता है या शादी से पहले उसके साथ गप्पे सप्पे चलाता है, होटलबाजी करता है, यहाँ वहां घूमने के लिए जाता है, तो ये सरासर नाजायज हो, हराम है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।